Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss a poem Man Was Made to Mourn a Dirge by Robert Burns. I will make two parts of this poem because this poem is little bit longer. So let's begin with some facts about Robert Burns. Robert Burns was a Scottish poet and lyricist. He was also called National Poet of Scotland and Ploughman Poet. He was born in poor family. His father was a farmer. That's why throughout his life he had seen many things like poverty, suffering, problems of common people. He had two failed marriages and his biographer named Crawford Robert Crawford said that he had suffered from maniac depression, that is called bipolar disorder. So these things are included in his poems, like his most of the poems are pessimistic poems. They show human problems. So I hope you understood this one. Now come to the poem. This poem was written in 1784 and it was written before his marriage and before he had left farming for an urban life as a poet. Uh, so now come to some more facts about this poem. Here, the poet describes himself walking one chill November evening along the bank of Ayr. Ayr is a river in Scotland and it is also a town where Robert Burns was uh, born and where he had lived throughout his lifetime. He, the poet in this poem, comes upon an 80-year-old man with white hair and wrinkled face. Here, poet shows that man comes programmed with all those ills and he is helpless to avoid them and can only mourn and make countless others mourn. So I hope you understood this one. There is 11 stanzas in this poem and this is pessimistic poem. Now we'll begin with lines. Here, when chill Novembers surely blast, mid fields and forest bare. यहाँ पे इस पोएम में जो पोएट है वो किसकी बात कर रहा है? स्कॉटलैंड की बात कर रहा है. स्कॉटलैंड में भी आयर जो टाउन है, आयर और आयर जो रिवर है वहाँ की बात कर रहा है. एंड यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पे नवंबर और दिसंबर का जो टाइम है बहुत ज़्यादा ही चिल होता है, जहाँ पे आइस गिरती है और जिस वजह से सब कुछ फ्रोज हो जाता है. तो यहाँ क्या है कि जो पोएट है वो बोल रहा है कि जो नवंबर है, नवंबर की ठंडी है वो क्या है, श्योरली ब्लास्ट मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी, जिसने क्या कर दिया था, जो मॉर्निंग थी वो मेड फील्ड्स एंड फॉरेस्ट बेयर, जिसने क्या कर दिया था, जो फील्ड और फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए थे, बेयर. बेयर का मतलब वहाँ सब कुछ शांति थी और जैसे ट्रीज है उन पे लीव्स नहीं थे और सब कुछ बेयर हो गया था, ख़त्म हो गया था. सो दैट इज़ द थिंग. जहाँ पे हर जगह हमें आइस दिखाई दे रही थी, मीन्स वाइट आइस वॉज देयर. दैट इज़ द थिंग here in this poem. Actually, this poem has two persons, like one is poet and the other one is an old man, and there are dialogues between two men. And जो डायलॉग है वो किस बारे में है कि कैसे जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसे सफ़र करती है, कैसे उन वो हमेशा सैड रहती है, इस पे ही ये पूरी पोएम है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि ही लाइटन्स हिज लेमेंट विद एन अक्नोलेजमेंट ऑफ मैंस हेवन erected face, adorned with smiles of love, and at the end welcomes the relief of death. यहाँ बता रहा है कि ह्यूमनिटी है वो क्या करती है लास्ट में, मीन्स
जो पोएम है वहाँ पे हर चीज़ ये बता रहा है कि क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है, क्यों उन्हीं के साथ में प्रॉब्लम है। जैसे कॉमन पीपल है वो क्या करते हैं, जब वो दुखी होते तो वो बोलते हैं कि हमारे साथ में ही ऐसा क्यों है। दैट इज़ द थिंग इन दिस पोएम ऑल्सो। सो लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक थिंग दी है, वो क्या है कि ह्यूमैनिटी है विल डिफीट इट्स नेमेसिस। So I hope you understood this one. So now begin with third line. One evening, इवनिंग का टाइम है, एज आई वॉन्डर्ड फॉर, जो चिल मॉर्निंग और चिल जो इवनिंग है, मीन्स जहाँ पे बहुत ठंड है, वहाँ पे इवनिंग के टाइम में जब वो वॉक कर रहा था पोएट, तो उसने क्या देखा, आई वॉन्डर्ड फॉर मतलब आगे की तरफ स्लोली स्लोली वॉक कर रहा था, वॉकिंग पे था तब, अलोंग द बैंक्स ऑफ आयर, कहाँ पे, जो उसका किनारा था, आयर जो रिवर है उसके पास में वो क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, आई स्पाइड अ मैन whose aged step. स्पाइड का मतलब यहाँ पे स्पाइड एक्चुअली स्पाई करना नहीं है, यहाँ मतलब है कि किसी को वो देखा उसने और उसको ऑब्जर्व किया, उस मैन को जिसको देखा पोएट ने। whose aged step, एज स्टेप का मतलब है कि जो एज मतलब बहुत ज़्यादा ही ओल्ड था, मे बी ही इज़ 80 ईयर ओल्ड पर्सन। सो उसके स्टेप मतलब उसके कदम, जब एक ओल्ड एज का जो मैन होता है वो कैसे चलता है, तो उस तरीके से भी ही यहाँ पे दिखाया है। सीम्ड वियरी मीन्स बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टायर है। वोन विद केयर, वोन विद केयर का मतलब कि उस वो इन सब चीज़ों से यूज टू हो गया है। केयर का मतलब उसने बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। जो एज, थ्रू आउट हिज एज ही हैड सीन मैनी थिंग्स, तो हिज फेस फरोड विद ईयर्स, और उसके फेस पे क्या, फरोड का मतलब रिंकल्स आ गए हैं, जो किस वजह से है, उसकी एज की वजह से है। एंड हॉरी वॉज हिज हेयर, और उसके जो हेयर वो कैसे हैं, वाइट हो गए हैं, ग्रे कलर के हैं। यहाँ पे चियास्मस लिटरेरी टर्म यूज हुआ है, चियास्मस, CHIASMUS। चियास्मस का मतलब है रिवर्सल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सो एंड हॉरी वॉज हिज हेयर मीन्स चियास्मस लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ अब उसने उस एज्ड मैन को देखा, और अब क्या है, उस जो ओल्ड एज का जो मैन है उसने भी नोटिस किया किसको, पोएट को। अब यहाँ पे डायलॉग्स हैं उन दोनों के बीच में, कन्वर्सेशन है, वो क्या है, यंग स्ट्रेंजर विदर वॉन्ड्रेस्ट दाउ। अब उसने पोएट को क्या बोला, यंग स्ट्रेंजर मीन्स तुम यंग हो, वेदर वॉन्ड्रेस्ट दाउ में वेदर मतलब वेयर, वॉन्ड्रेस्ट दाउ की, दाउ मीन्स यू, तुम कहाँ पे घूम रहे हो, किधर जा रहे हो, मीन्स उसने, जैसे हम किसी से अचानक मिलते हैं किसी भी स्ट्रेंजर से, तो हम पूछते हैं कि किस साइड में जा रहे हो आप, तो इस तरीके से उस जो एज्ड जो मैन था उसने पूछा। बिगिन द रेवरेंड सेज, स्टार्ट किया, ये जो कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन इज इन past tense so that we can assume that poet is remembering his old days। यहाँ पे स्टार्ट किया, रेवरेंट होता है, एक टाइटल होता है, रिलीजियस टाइटल होता है, किन के लिए यूज होता है, जो सरमन देते हैं या चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है रेवरेंट, एक टाइटल होता है रिलीजियस। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं मठ, जैसे अगर मंदिर या टेम्पल में हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मठाधीश बोला जाता है, या फिर समथिंग लाइक वो जो एक टाइटल दिया जाता है, उसी तरीके से रेवरेंट क्या है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें एक टाइटल दिया जाता है किनको, प्रिस्ट को, या फिर जो भी लोग हैं जो होली थिंग्स को फॉलो करते हैं, मीन्स पायस होते हैं उनके लिए। तो सेज मीन्स लाइक अ मोंक, ही हैज सीन लाइक अ मोंक। मोंक कैसे होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं और जिनको दुनिया से परवाह नहीं होती, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो पोइट है वो बता रहा है कि उसने स्टार्ट किया कन्वर्सेशन की, उसने पूछा पोइट से कि कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे घूम रहे हो। डज
थर्स्ट ऑफ वेल्थ दाई स्टेप कंस्ट्रेन। कि अब वो फिलोसफिकल बातें स्टार्ट की है उसने कि ये जो थर्स्ट है, जो प्यास है किसकी, वेल्थ की। मीन्स एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए लाइफ में, हर एक को वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए। तो ये जो जो थर्स्ट है वेल्थ की, दाई मीन्स योर, स्टेप कंस्ट्रेन का मतलब ऑब्स्टेकल है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है तुम्हें किधर जाने से, आगे बढ़ने से। और यूथफुल प्लेजर्स रेज, या फिर जो तुम्हारा यूथफुल प्लेजर्स रेज का मतलब जो एक यंग पर्सन होता है उसके पास में बहुत सारे एम्बिशन होते हैं, बहुत पैशन होता है, वो क्या करता है उनको रोकता है किस तरफ जाने से, कुछ ह्यूमनिटी की थिंग्स करने से, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा करने से उनको क्या करता है, ऑब्स्टेकल करता है, रोकता है। सो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है। और हैप्पली प्रेस्ड विद गियर्स एंड वूज, और हैप्पली का मतलब शायद, बाय चांस, प्रेस्ड, प्रेस्ड का मतलब रेडी होना या ऑब्सोल्यूट होना, विद गियर्स एंड वूज, शायद ये क्या है, केयर करना, और वूज का मतलब है प्रॉब्लम्स, परेशानियां जो हैं। केयर्स का मतलब यहाँ पे वी कैन से हैप्पी थिंग्स, और परेशानियां दोनों चीज़ हैं। वो क्या कर रही है, टू टू सून दाउ हैस्ट बिगिन, और इसी वजह से तुम क्या कर रहे हो, बहुत जल्दी ही अपनी यंग एज में ही तुमने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, टू वॉन्डर फोर्थ, इस तरीके से इधर उधर घूमना तुमने स्टार्ट कर दिया है, विद मी टू मोन, क्योंकि अब तुम क्या करो, मेरे साथ में ही मोन करो। ऐसा लग रहा है जो ओल्ड एज का जो पर्सन है वो इससे ये बताना चाह रहा है कि ये जो सब चीज़ें हैं और तुम ऐसे घूम रहे हो, वॉन्डर कर रहे हो, इससे ऐसा लग रहा है कि तुम भी मेरी तरह ही क्या हो, सैड हो, तुम्हें भी अपनी लाइफ में बहुत सफरिंग्स मिली है, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ में मौन कर रहे हो। मौन मतलब सैड होना, किसी बात पे क्राई करना। द मिजरीज ऑफ मैन, जो मिजरीज हैं, लाइफ की परेशानियां हैं मैन की, उस वजह से तुम क्या कर रहे हो, वॉन्डर कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन स्टेंजा। नाउ इन दिस इन दिस स्टेंजा द पोएट इज शोइंग थिंग्स, कि क्यों वो यहाँ पे वॉन्डर कर रहा है, उसका वो रीजन देगा, रिप्लाई देगा, बोलेगा द सन दैट ओवर हैंग्स योन मोर्स, जो जो सन है, ओवर हैंग्स योन मोर्स का मतलब, ओवरहैंग का मतलब स्टिक होना किसी चीज पे, योन का मतलब दैट, मतलब जो डिस्टेंस से दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं बोलता हम किसी की तरफ फिंगर करके हम बोलते कि वो पर्सन या फिर वो थिंग्स, जब हम किसी की तरफ फिंगर करते हैं वो क्या होता है, दैट मीन्स योन। मूर्स का मतलब होता है एक ओपन एरिया ऑफ हिल्स कवर्ड विद रफ ग्रास, जो पहाड़ी होती है, जैसे कभी आपने सीनरी बनाई हो, लाइक दिस इज द माउंटेन, दीज आर द माउंटेन्स, और यहाँ पे आपने देखा होगा कभी हमने चाइल्डहुड में हमने बहुत सारी सीनरीज बनाई है जहाँ पे ये माउंटेन्स हमने बनाए, और यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है, तो सेम काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड मूर्स। तो वहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो जो सन है वो जो स्टिक हो गया है कहाँ पे, माउंटेन में। तो वो क्या है, आउट स्प्रेडिंग फार एंड वाइड, आउट स्प्रेडिंग का मतलब दूर तक उसकी सन रेज जा रही है, फार मतलब बहुत दूर तक, एंड वाइड हर जगह फैली हुई है। वेयर हंड्रेड्स लेबर टू सपोर्ट, जहाँ पे हंड्रेड्स मीन्स यहाँ किसके लिए बोला है, पुअर पीपल के लिए बोला है जो फार्मिंग कर रहे हैं। बिकॉज रॉबर्ट बर्न्स व्हेन ही हैड रिटन दिस पोएम ही वाज इन हिज फार्मिंग फील्ड, मीन्स वो भी अपने फादर की हेल्प करता था फार्मिंग में। सो यहाँ पे बोल रहा है लेबर्स किसके लिए, पुअर पीपल जो क्या करे, फार्मिंग फील्ड में काम करे, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट अ होटी लॉर्डलिंग प्राइड, वो क्या कर रहे हैं, लॉर्डलिंग का मतलब जो फ्यूडल्स होते हैं, जैसे किसी के पास में फील्ड होती है और वो वहाँ पे लेबर्स रखते हैं फार्मिंग में काम करने के लिए। तो यहाँ किसको
बोला है जिसके पास में मनी है, वेल्थ है। होटी मतलब वो एक प्राउडी पर्सन है, उसको वो क्या करे, सपोर्ट करे, मतलब उसके अंडर में वो वर्क करे। कौन? जो हंड्रेड्स मीन्स बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में है, या फिर हम काउंटिंग में कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स मीन्स बहुत ज़्यादा ही लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। आई हैव सीन योन वियरी विंटरसन, कि मैंने देखा है, वो दैट पॉइंट इज सेइंग दैट मैंने देखा है, योन मीन्स वो जो वियरी, विंटर सन मतलब यहाँ पे सन को पर्सोनिफाई किया है। वियरी मीन्स वो बहुत ज़्यादा ही थक गया है, या थकने से मतलब है कि उसकी भी एक एज हो गई है, वी कैन से लाइक दैट, कि अ, वो हमेशा से हमें दिखाई दे रहा है सन, और उस सन रेज में हम देख रहे हैं कि पुअर पीपल है, वो क्या हो जाते हैं, बोर्न होते हैं, फिर अपनी लाइफ जीते हैं एंड देन डाई। सो लाइक दिस इज द लाइफ सर्कल। और इसी वजह से जो सन है, सन भी कैसा लग रहा है उनको, एक वियरी लग रहा है, वियरी मतलब एक थका हुआ सा, टायर्ड लग रहा है, कि वो भी इस लाइफ सर्कल से क्या हो गया, टायर्ड हो गया हो। ट्वाइस 40 टाइम्स रिटर्न। अब 40 टाइम्स है ना, दैट इज द वी कैन से वन टर्म, दैट इज मीन्स जिसका बहुत यूज है किसमें, रिलीजन में। 40 जो है हर एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें क्रिश्चियन माइथोलॉजी की, तो यहाँ पे 40 है वो शो करता है कि टाइम पीरियड विच सेपरेट्स टू डिस्टिंक्ट एपो, दो जो काल होते हैं, काल जब हम हिंदी में बोलते हैं जैसे कलयुग या फिर सतयुग, लाइक दैट। सो यहाँ पे क्रिश्चियन मैथोलॉजी में भी क्या होते हैं, दो जो इपोक है, वो क्या है, वो किसको शो करते हैं, 40 को यू इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ द थिंग। और इसी वजह से अगर हम देखें हिंदू माइथोलॉजी में भी बात करें, तो 40 किसको शो करता है, 40 दिन का फास्ट होता है, 40 गोड्स होते हैं, या समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे 40 क्या है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है एक थिंग के लिए, एक रिलीजियस पर्सन के लिए। सो यहाँ ट्वाइस 40 टाइम्स रिटर्न का मतलब दो काल बीत जाने के बाद में दो और काल इपोक बीत जाते हैं, मीन्स ट्वाइस रिटर्न। इतना टाइम बीतने के बाद भी लाइक बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग पीरियड क्या करता है, ख़त्म होने के बाद में भी मैंने क्या देखा है, एंड एवरी टाइम हैड एडेड प्रूफ्स। ये जो सन है ये क्या देता है, हमें प्रूफ देता है। बिकॉज अगर हम बात करें सन जो क्या है, हमेशा से रहा है, मीन्स पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी है, और प्रेजेंट में भी रहेगा, तो दैट इज़ द थिंग। सो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, एक प्रूफ दे रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, किस लिए है, वो हमेशा सैड रहने के लिए ही बने हैं। मीन्स उनके पास में हैप्पीनेस तो होती नहीं है, उसकी बजाय क्या होती है, सफरिंग्स होती है। गॉड ने हमें भेजा ही क्यों है, क्योंकि हम सफ़र करते रहे। सो यहाँ क्या है, पेसिमिस्टिक थिंग्स शो कर रहा है पोएट। और यहाँ पे जो यंग पर्सन है वो भी यही शो कर रहा है, बिकॉज he is in trouble. So this line is repeatedly used in this poem. So this is called refrain. रेफरेन होता है जब एक सेंटेंस रिपीटेडली यूज होता है किसी भी पोएम में, वो कहलाता है रेफरेन। सो अब जो ओल्ड पर्सन है, दैट इज सेइंग दैट ओ मैन, while in thy early years how prodigal of time। अब वो बता रहा है कि मैं जब तुम्हारी ही एज में था तब मैं कितना ज़्यादा क्या करता था, प्रोडिगल का मतलब वेस्ट करना, मैं अपना टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट करता था। मीन्स मैंने कभी भी उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, मिस स्पेंडिंग ऑल दाई प्रेसियस आवर्स। मैंने क्या कर दिया, स्पेंड रोंगली या एक्स्ट्रा वेगेंटली, मैंने उस टाइम को, जो प्रीसियस आवर्स थे, मेरे हैप्पी मोमेंट्स थे, मैंने उन सब को वेस्ट कर दिया। दाई ग्लोरियस यूथफुल प्राइम, दाई मतलब वो क्या थे,
ग्लोरियस, जहाँ पे मुझे फेम मिल सकता था, जहाँ पे मैं वर्क करके क्या कर सकता था, अपने लिए यूजफुल थिंग्स कर सकता था। तो यहाँ पे ओल्ड मैन है वो किसको शो कर रहा है, ऑप्टिमिज्म को शो कर रहा है, यूथफुल प्राइम। लेकिन अभी क्या है, वो रिग्रेट कर रहा है अपने जो वर्क्स उसने डन किए हैं अपनी लाइफ में। यूथफुल प्राइम मतलब जो ब्यूटीफुल ईयर्स थे मेरे यंग एज के, उनमें, उन ग्लोरियस ईयर्स में मैं क्या कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। ऑल्टरनेट फॉलीज टेक द स्वे। ऑल्टरनेट फॉलीज का मतलब अगेन एंड अगेन मैंने क्या किया, फॉलीज मतलब फुलिश थिंग्स किए, जिसने क्या कर दिया, मेरे जो ईयर्स थे, यूथफुल ईयर्स थे, उन सब को उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। लाइसेंसियस पैशंस बर्न। लाइसेंसियस मतलब जो यूथफुल यंग एज में कुछ लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, जो अपना टाइम स्पेंड करने की बजाय क्या करते हैं, उनको वेस्ट करते हैं। लाइसेंसियस का मतलब होता है लैक ऑफ मोरल डिसिप्लिन या फिर इमोरल बिहेवियर। किसी का इमोरल बिहेवियर होता है लाइक किसी भी गर्ल्स को छेड़ना या उनको अब्यूज़ करना, दैट इज़ द लाइसेंसियस थिंग्स। मीन्स जो उन जो लाइसेंसियस जो मेरी इमोरल बिहेवियर था यूथ यंग एज में, उन सब को उसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया मेरे टाइम को। विच टेन फोल्ड फोर्स गिव्स नेचर्स लो। टेन फोल्ड का मतलब 10 टाइम, 10 गुना, जिसने फोर्स किया कि इसको नेचर स्लो। नेचर स्लो क्या है कि अ सिस्टम ऑफ राइट और जस्टिस हेल्ड टू बी कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब है कि जहाँ पे हर एक इंसान पे एक ही रूल लागू होता हो, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलता, लेकिन किससे मिलता, हमें प्रकृति से मिलता है। कहने का मतलब है जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ नेचर्स लॉ। सो उसने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया कि मैंने जो यंग एज में जितने भी गलतियाँ की थी, मिस्टेक्स की थी, तो उसकी अब मुझे क्या करनी पड़ रही है, भरपाई करनी पड़ी है। इसी वजह से दैट मैन वॉज मेड टू मोर्न। इसी वजह से जो यंग एज में जो हम मिस्टेक्स करते हैं, उनकी वजह से ही हमें क्या करना पड़ता है, मोर्न करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ द डायलॉग ऑफ दैट यंग पर्सन इज दैट, लुक नॉट अलोन ऑन यूथफुल प्राइम। देखो, तुम अकेले ही नहीं हो जो यूथफुल प्राइम मतलब तुम्हारे जो ब्यूटीफुल ईयर्स रहे हों, और मैनहुड्स एक्टिव माइट, या फिर जो मैनहुड है उसकी जो एक्टिव माइट का मतलब जो एक्टिवली वो थिंग्स करते हैं। मतलब तुम अकेले ही नहीं हो इस अर्थ पे जो ये सब मिस्टेक्स करता है। इसमें बहुत सारे लोग भी हैं जो मिस्टेक्स करते हैं। मैन देन इज़ यूजफुल टू हिज काइंड। जो मैन है वो क्या है, वो अपने खुद के लिए ही वो क्या है, यूजफुल है। अपनी तरफ से ही वो यूजफुल बनाता है अपनी लाइफ को, क्योंकि वो अपने खुद के एक्ट से ही अपनी लाइफ को शो करता है। सपोर्टेड इन हिज राइट, जो खुद को सपोर्ट करता है, मीन्स या ह्यूमैनिटी की बात की है कि अपनी लाइफ में वो कितना सपोर्ट करे किसी भी चीज़ को, या ह्यूमन बीइंग को कितना हेल्प करता है। बट सी हिम ऑन द एज ऑफ लाइफ। लेकिन जब यंग एज बीत जाती है, तब जब ओल्ड एज में हम देखते हैं विद केयर्स एंड सोरो वॉन्ट, जहाँ पे उसको केयर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उसकी लाइफ में क्या आती है, सोरो एंड सफरिंग्स आती है। देन एज एंड वॉन्ट ओ, और तभी क्या होता है, उसकी लाइफ में दोनों चीज़ होती है। पैराडॉक्सिकल थिंग्स होती है कि उसकी एज भी ख़त्म हो गई, और वॉन्ट मतलब उसकी विशेज, जो उसकी विशेज थी यंग एज में जो उसने ख़त्म कर दी, जो उसके अम्बिशन थे, जो पैशन थे, उनको पूरा करना था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इस पे सोरो मीन्स एक्सप्रेस कर रहा है, सैड थिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है कि इल मैच्ड पेयर, कि ये दोनों ही एज और जो वांट है, मीन्स जो विशेज है और जो हमारी एज है, वो क्या है, दोनों क्या है, इल मैच्ड
पेयर है, इलनेस का मतलब बहुत ज़्यादा ही दुखी की थिंग्स है, सैड थिंग है। शू मैन वॉज मेड टू मॉर्न, शू का मतलब ओल्ड फैशन, इंग्लिश में शू किसको बोला जाता है, शो को। जो इलमेट्स पेयर हमें क्या दिखाता है कि जो मैन है वो ही किस लिए बना है, मोर्न करने के लिए बना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। आई विल make another video on half of this poem. Till then, bye, have a nice day.